Right, children. So in the previous class we have studied about mitochondria, and we said mitochondria is known as powerhouse because it is the cell organelle in which ATP are produced. Today we are going to start with plastids. कहाँ मिलेंगे plastids? Only in plants. ठीक है? Plastids are actually we classify plastids into two, that is the colorless, that is leucoplast, and colored, that is chromoplast. Now different books are there which actually classify them into the chloroplast एंड क्रोमोप्लास्ट के अंदर ही क्लोरोप्लास्ट को भी इंक्लूड करते हैं बिकॉज कलर तो है, क्रोम इज ऑल्सो ए कलर. ठीक है, सो क्लोरोप्लास्ट इज ऑल्सो ए पार्ट ऑफ क्रोमोप्लास्ट. नाउ व्हाई वी ऑल, इनमें तो कोई सिमिलरिटी नहीं है. वन इज कैरिंग फॉर आउट फोटोसिंथेसिस, वन इज ओनली गिविंग कलर, वन इज ओनली स्टोरिंग फूड. तो व्हेन देयर आर नो सिमिलर, देन व्हाई आर वी प्लेसिंग देम टुगेदर अंडर वन सिंगल हेडिंग? एक ही जगह पे क्यों डालते हैं? तो द रीजन इज दैट इज दे आर इंटरचेंजेबल. इफ रिक्वायर्ड दे कैन चेंज फ्रॉम वन अनदर वन टू वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म, एंड दैट इज ओनली पॉसिबल इफ दे आर सेम टाइप ऑफ ऑर्गेनेल. ठीक है, ऐसा तो ही नहीं सकता माइटोकॉन्ड्रिया कैन चेंज इनटू क्लोरोप्लास्ट और क्लोरोप्लास्ट कैन चेंज इनटू लाइसोसोम और राइबोसोम. ओनली द प्लास्टिड्स कैन चेंज. तो a leucoplast can change into chromoplast, chromoplast can change into chloroplast, chloroplast can change into this, vice versa. ठीक है, आपके पास में ग्राम है, चने का सीड है. Now the chana seed is having leucoplast. It is not having any pigment, no color in this. No sooner you germinate it and it germinate, and that same the what you call cotyledons are there in which the leucoplasts were there, which were colorless. After some time they become green and they act as first leaf, so they become chloroplast. ठीक है, अब आम केरी तो सबने खाए हैं, है ना, और मोस्ट ऑफ द फ्रूट्स इन दैट सेंस. टमाटो, कच्चा टमाटो ग्रीन कलर का होता है, दैट इज क्लोरोप्लास्ट, एंड आफ्टर सम टाइम इट बिकम क्रोमोप्लास्ट, रेड कलर का हो जाता है. कच्ची केरी हरी होती है, पकने के बाद वो पीला आम बन जाता है. तो they are interchangeable, and that is why we are included them together in the same category. Characteristic also, if you see, both of them are, मतलब plastids are actually double membrane. ठीक है, double membrane है, but unlike in mitochondria, their two membranes are more or less of uniform size. There is in mitochondria what we studied, the inner membrane was much bigger, so it developed folds. There is no such thing here. Okay, if we study the chloroplast, because chloroplast is the largest in number, so chloroplast के अंदर क्या मिलेंगे? upper membrane, outer membrane, inner membrane. Then you will find there are some grana thylakoids there. Then there are threads which will be connecting two or more such thylakoids. ठीक है, and these thylakoids actually contain chloroplast in them. And then there is this the place, क्या कहेंगे इसको? The that is in mitochondria we are calling them as matrix, and here stroma. ठीक है, तो grana and stroma are there. Stroma contain all the enzymes and all the other things which are required for the photosynthetic activity to take place. Chloroplast करता है क्या है? What is doing? It is preparing food. Photosynthesis करता है. It is giving oxygen. It is converting. मतलब carbon dioxide is actually used, but carbon dioxide का अलग फंडा है. Oxygen is given out in photosynthesis. Sorry, by the photolysis of water. तो एक इसका जो important process है वो है photo photolysis of water. If you had to carry out photolysis of water, if you had to break water in the
ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, यू विल हैव टू यूज इलेक्ट्रिसिटी। प्लांट जो है लाइट एनर्जी को यूज करके कर सकता है। देयर आर, दैट इज द वंडर ऑफ द लिविंग बींग्स। लिविंग बींग्स आर मच मच सुपीरियर देन द एनी ऑफ आवर प्रोसेसेस। ठीक है, आप कितना भी अच्छा माइक्रोस्कोप बनाओ, कितना भी अच्छा कैमरा बनाओ, कितना भी अच्छा कोई भी चीज़ बनाओ, वो 19 ही रहेंगे लिविंग बींग्स हैं। ठीक है, वी हैव अ लिमिटेशन दैट वी गेट टायर्ड, वी गेट बोर्ड अप डूइंग सेम टाइप ऑफ एक्टिविटी। वहाँ हम कंप्यूटर को बैठा देते हैं, उसका एक ही काम है, ज़िंदगी भर करता रहेगा, कभी थकता नहीं वो। ठीक है, तो दैट इज द स्पीड कैन बी बेटर इन दोज थिंग्स। तो दैट वे दो नॉन लिविंग, दैट इज मैन मेड थिंग्स कैन बी बेटर। अदरवाइज किसी भी हालत में लिविंग बींग्स जो है दे आर ऑलवेज मार्वलस। ठीक है, तो फोटोसिंथेसिस के लिए ये जो चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें क्लोरोप्लास्ट में होती हैं। फंक्शन तो मैं आपको बता ही चुका हूँ। डिफरेंसेस अगर आएंगे माइटोकॉन्ड्रिया एंड प्लास्टिड्स के बीच में, you can write number of differences in the inner membrane, differences in the stroma and matrix are difference है, process का difference है। In mitochondria oxygen is used, carbon dioxide is given, photosynthesis that is chloroplast, carbon dioxide is used, oxygen is given out। ठीक है, mitochondria ग्लूकोज को तोड़ता है, प्लास्टिड ग्लूकोज को बनाता है। both these can produce ATP। ठीक है, and both mitochondria and plastid have got their own DNA, so they are not dependent on the nuclear DNA। वो nuclear DNA के ऊपर डिपेंड नहीं करते हैं for control of their characteristic or their processes and all। they will have their own processing that is controlled by their own DNA। okay, both have got their own ribosomes, so they can be used in making proteins। so in certain ways जो है plastids and mitochondria they are different। it is believed that the mitochondria and plastids are actually formed by that is entry of one unicellular cell into another cell। ठीक है, एक सेल थी कहीं पे, उसके अंदर दूसरा सेल घुस गया, उसके कारण वो डबल मेम्ब्रेन हो गया, एंड दैट इज व्हाई दे आर बिहेविंग लाइक दैट, एंड दैट इज व्हाई दे गॉट देयर ओन डीएनए। ऐसा इट इज बिलीव्ड। नाउ हाउ फार इट इज बिलीव्ड, वी हाउ फार इट इज ट्रू वी डोंट नो। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रियम प्लास्टिड्स आपके समझ आ गए। नेक्स्ट पढ़ते हैं हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहाँ मिलेंगे? दे आर फाउंड इन आउटसाइड द न्यूक्लियस। सपोज दिस इज द न्यूक्लियस, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हैज सेवरल places where they may be connected to the endoplasmic reticulum। एंडो का मतलब होता है अंदर, प्लाज्मिक का मतलब प्लाज्मा, और रेटिकुलम का मतलब जाल। दैट इज साइटोप्लाज्म के अंदर जो जाल बन रहा होता है उसको हम कहेंगे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। We already studied about endoplasmic reticulum in class 9th। There are of two types, smooth endoplasmic reticulum and rough endoplasmic reticulum। Rough endoplasmic reticulum has got ribosomes attached on their outer surface। Smooth does not have that thing। The endoplasmic reticulum can be connected from one end to the nucleus and other end they may be connected to the cell membrane, but it is not necessary। ठीक है, then we also studied that the endoplasmic reticulum has three type के structure मिलेंगे उसमें। एक तो tubular structure मिलेंगे, tubules and network, then there will be some cisternae। ठीक है, तो cisternae रहेंगे, and there may be some vesicle। तो cisternae and vesicles are the small fragments। ठीक है, ये छोटे होते हैं, and the vesicles may contain some of the substances which are produced by them, they are stored। It is also believed that the Golgi body, which is also tubular, and actually it is believed that they are actually formed from the endoplasmic reticulum, but there is no such relation we have identified। Function क्या हुआ endoplasmic reticulum का? First of all, it is giving a reticulate structure, so it will not let the cell to be immediately change its shape। Secondly, it will cytoplasmic streaming होती है, cytoplasm keep on rotating, moving, then also it will not let certain of cell organelles to accumulate in some places। They will be trapped, they will be kept in their original place। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का सबसे बड़ा और ज़्यादा इंपॉर्टेंट काम है दैट इज एक्सचेंज ऑफ मटेरियल बिटवीन दिस सेल और फ्रॉम वन सेल टू अनदर सेल। ठीक है, तो ये उसका ज़्यादा बड़ा काम है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ऑल्सो प्रोवाइड a large surface area, and you know all the chemical reaction in the cells are actually taking place on the cell membrane or under membranes। तो membrane area जो है ये सबसे ज़्यादा प्रोवाइड कर रहे हैं। तो more surface area means more type of chemical reaction। तो most of the chemical reactions are actually taking place in the endoplasmic reticulum। Generally they are associated with the production of lipids, cholesterol and other substances। However, if they have got ribosome attached on their outer surface, they can even produce proteins। ठीक है, तो proteins and lipids, as you know, they are the
इम्पॉर्टेंट कंस्टिट्यूएंट ऑफ द मेम्ब्रेन। तो ये मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस में भी इनका रोल रहेगा कि अगर मेम्ब्रेन डैमेज हो गई है या उसकी ग्रोथ करानी है तो हाउ द प्राइमरी सब्सटेंसेस आर एक्चुअली कमिंग फ्रॉम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, नेक्स्ट टू इट इज द गोल्जी बॉडी। कैमिलियो गोल्गी ने उनको डिस्कवर करा था। वो प्लांट्स के अंदर जो होते हैं दे वर ऑलरेडी नोन एज डिक्टायोसोम, बट लेटर ऑन जो है मालूम पड़ा कि डिक्टायोसोम्स आर नॉट सेपरेट ऑर्गेनली बट दे आर एक्चुअली दिस एंडोप्लाज्मिक सॉरी गोल्जी बॉडी ओनली। तो आप इसको गोल्जी बॉडी के नाम से जानेंगे, गोल्जी एपरेटस के नाम से जाएंगे, चाहे आप इसको डिक्टायोसोम नाम से जानेंगे। ठीक है, तो ये इनका हो गया। दे आर ऑल्सो मोरलेस ट्यूबुलर, बट ऐसे लंबी ट्यूब्स नहीं मिलती है लाइक दिस सिस्टम ही आर देयर लाइक दैट ओनली, दे हैव गॉट सम स्टेक्स ऑफ द ट्यूब्यूल्स, छोटी छोटी ट्यूब्यूल्स। ठीक है, एंड दे आर ऑफन फाउंड इन द सेट ऑफ 5 to 8 और मोर। ठीक है, एंड दे आर saucer like, एंड इसके साथ में भी आपको सम वेसिकल्स मिलेंगे। नाउ दे आर आल्सो responsible for the production of certain type of chemical reaction because of the large surface area, and whatever substances are produced in this, they can be pinched off and they can be packed in this vesicle, and the vesicle can help in vesicle can transport them। तो इनके काम हो गए, that is synthesis of certain type of biomolecules। ठीक है, then packing of those biomolecules and transport of those biomolecules। Since they got large surface area, they will provide more active participation in chemical reactions। ठीक है, तो ये सब जो है गोल्जी बॉडी के बारे में हो गए। नेक्स्ट जो है अपन को पढ़ने हैं that is the cell organelle, that is the small one, the lysosomes। Lysosomes are the small cell organelle bag-like structures हैं, generally found in the animal cells। plants में ये generally absent होती हैं। They are containing some kind of digestive juices, and these digestive juices are used in making breaking down of certain type of substances। ठीक है, तो ये इनका काम हो गया। Lysosomes जो होती हैं they are more common in those cells which are like WBC cells, which are actually meant for breakdown or digestion of the foreign bodies। ठीक है, अदर सेल्स में ये कम हो सकती हैं, किसी में ज़्यादा हो सकती हैं। इन्हीं का कुछ मॉडिफाइड फॉर्म जो हो सकते हैं वो पेरोक्सीसोम्स वगैरह हो सकते हैं। ठीक है, जिनको हम माइक्रो बॉडीज़ के नाम से पढ़ेंगे। ठीक है, तो वो भी कुछ टाइप के एंजाइम स्टोर करके रखती हैं, एंड दे आर ऑल्सो टाइनी बैग लाइक स्ट्रक्चर्स। प्लांट्स के अंदर दे आर नंबर ऑफ वेरी लेस और जनरली एब्सेंट। जनरली सेल्स के अंदर आप ढूंढेंगे उनको, आपको लाइसोसोम्स नहीं मिलेंगे। एंड नेक्स्ट इज लार्ज साइज, जिसको हम कहेंगे vacuoles। Vacuoles are small in size and few in number in case of animals, but they are large in size and large in number in case of plants। Plants में कई बार ये जो है they can occupy about 50 to 70% or even up to 90% of the total volume of a cell। Vacuoles जो होती हैं उनकी जो membrane है, the membrane of the vacuole is known as tonoplast, and the content whatever they are containing inside, they are collectively known as cell sap। सेल सैप बोले तो क्या है, दे मे कंटेन वेराइटी ऑफ थिंग्स, दे मे कंटेन फूड, दे मे कंटेन वेस्ट, दे मे कंटेन सर्टन टाइप ऑफ स्पेशल प्रोडक्ट्स लाइक सर्टन ऑयल्स और सर्टन टाइप ऑफ अदर सब्सटेंसेस इन देम। ओके, और वैक्यूल जो होती है एक खास तरह की वैक्यूल जिनको हमने पढ़ा है कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल कौन सी होती है? दे आर द स्मॉल वैक्यूल which are found in the unicellular organisms which are living in the water। Since they are living in the water, जैसे ये हमारा अमीबा है, since it is living in the water, so इसके अंदर क्या बॉडी में पानी लगातार आ सकता है। तो since it may water may keep entering in them, so what they do, they keep storing the excess of water, and the vacuoles will grow on, increasing in size, and then when it become a sufficiently large size, then it comes onto the surface and bursts throughout the water। तो एक तरह से ये जैसे कोई किसी की नाव हो और नाव में कोई छोटा छेद हो रहा है, उससे पानी आ रहा हो, तो वो क्या कर सकता है, एक छोटा सा मग और एक छोटी सी बाल्टी रख सकता है, कीप फिलिंग द वाटर एंड थ्रो आउटसाइड, अदरवाइज द बोट में सिंक। Similarly, if they will not throw the excess of water out, the cell will grow in size and ultimately it may burst। So to prevent that type of activity, excess of water is first stored in Hungary। Excess of water is first stored in these vacuoles. Vacuole will keep growing in size, and once they reach to a certain size, then it comes onto the membrane and through the
waste out or water out, excess substances out. So this is called contractile vacuole. ठीक है. देन फूड वैक्यूल अपन ने पढ़ ही रखा है. अमीबा में एंड न्यूट्रिशन में इन 10th क्लास वी हैव स्टडीड दैट इट फॉर्म्स pseudopodia. It surrounds the food and the food ultimately is got trapped into this vacuole. This vacuole, such type of vacuole is called the food vacuole, and digestion is taking place in the food vacuole in case of amoeba and other unicellular organisms. Even paramecium and जितने भी unicellular organisms हैं उनमें ये है. तो vacuole are very important. ठीक है. Plants में they are generally large. Why? Because plants are not having any specific excretory organs. तो many a time plant क्या करता है ना, whatever type of their waste is there, they temporarily dump into these vacuoles. हमारे भी घर में अगर काफ़ी सारे कमरे हों तो एक कमरा अपन ऐसे ही बना लेते हैं, जो भी चीज़ एक्सेस है सब ले जाकर, सर गर्मियाँ ख़त्म, चलो कूड़ा ले जाकर उसके अंदर रख दो. ठीक है. और सारे वुलन कपड़े जो है सर्दियाँ आएंगी ख़त्म हो जाएगी तो विल बी हैविंग सम ट्रंक्स. In that room we keep the trunk and we put all the woolen clothes in that. So एक रूम अपन कुछ ऐसे ही बना लेते हैं घर के अंदर, कुछ ऐसा ही है जिसको आप स्टोर रूम कहते हैं, पर स्टोर रूम छोटे होते थे, इसके घर में कोई इतना बड़ा रूम नहीं. और स्टोर रूम में हम कई कपड़े थोड़ी डालेंगे, कूलर रखने लायक जगह नहीं रहती. तो क्या है, एक कमरा यार बच्चों के लिए बनाया था, बच्चे तो हैं नहीं, चलो कमरे को कन्वर्ट कर दो. सिमिलरली प्लांट व्हाट डू दे हैड वैक्यूल्स बट दे केप्ट स्टोरिंग द वेरियस टाइप ऑफ सब्सटेंसेस. अब उनमें से कुछ वैक्यूल को ये वेस्ट भरने के काम में लेते. सो वट एवर टाइप ऑफ वेस्ट आर देयर दैट दे कीप ऑन फिलिंग इन इट. ठीक है. एंड हेंस द साइज ऑफ द vacuole go on increasing. However, in plants the process of waste generation is very slow. ठीक है सर. ओके. सो वैक्यूल की इतनी सारी बातें हैं. ठीक है. प्लांट्स के अंदर वैक्यूल जो है बड़े होते हैं बिकॉज दे आर स्टोरिंग वेस्ट ऑल्सो एंड दे आर स्टोरिंग समटाइम्स दे स्टोर देयर प्रोडक्ट ऑल्सो. नाउ वट एवर टाइप ऑफ प्रोडक्ट्स दे आर प्रोड्यूसिंग दैट ऑल्सो आर स्टोर्ड इन द वैक्यूल्स. सो दैट इज व्हाई वैक्यूल्स आर. Now two ऐसे सेल ऑर्गेनेल हैं मैंने, इफ यू रिमेंबर मैंने उनको इस तरह से पढ़ाया. फर्स्ट आई थॉट ऑल द टू मेम्ब्रेन वाले, द डीएनए कंटेनिंग ऑटोनोमस ऑर्गेनेली, दैट इज माइटोकॉन्ड्रिया एंड प्लास्टिड. देन टू आई थॉट वाज द ट्यूबुलर. Now I am teaching the glandular, which stores, which fills something. So in that first was vacuole and first was lysosome and second was vacuole. अब टू ऐसे सेल ऑर्गेनेली जिनके ऊपर मेम्ब्रेन नहीं मिलती है. ठीक है. विदाउट मेम्ब्रेन दे आर, है ना. उनमें से एक तो आपने पढ़ रखा है पहले भी, दैट इज राइबोसोम. राइबोसोम आर सच सेल ऑर्गेनेली विच आर मेड अप ऑफ टू बॉडीज, दैट इज द लार्ज सब यूनिट एंड द स्मॉल सब यूनिट, एंड दे आर एक्चुअली मेम्ब्रेनलेस एंड दे आर कंटेनिंग वेरियस टाइप्स ऑफ जैसे थिंग्स इन देम. वो प्रोटीन्स होते हैं कुछ और कुछ उसके अंदर आरएनए रहते हैं, है ना. तो इफ यू लुक एट देम दे विल बी लुकिंग समवॉट सिमिलर, समवॉट लाइक दिस. ठीक है. a small sub unit is there and a large sub unit is there, and through which messenger RNA passes, and messenger RNA's codes are read by them and they are associated in production of protein. ठीक है. तो वो उनके साथ में जो है प्रोटीन बनाते हैं. राइबोसोम्स आर एक्चुअली राइबोसोमल आरएनए जो होंगे वो एक्चुअली प्रोटीन बनाने के काम आएंगे. तो वो जो है वो यहाँ पे मिल रहा है. ठीक है. नाउ राइबोसोम जो होते हैं दे आर सच सेल ऑर्गेनेली विच आर फाउंड इन ऑल द पार्ट्स ऑफ प्लांट एंड ऑल द काइंड ऑफ सेल्स. all the parts of a cell and all the parts of the cell and all the kind of cell. Means you will find them in the prokaryote, you will find them in the eukaryote. You will find in the mitochondria, you will find in the plastid, you will find them in the centrosome, you will find them in the nucleoplasm also. ठीक है. सेंट्रोसोम नहीं, साइटोप्लाज्म, एंड यू विल फाइंड देम इन द न्यूक्लियोप्लाज्म also. तो ये हर जगह पे मिलने वाले ऑर्गेनेली हैं और बहुत छोटे होते हैं. दो सब यूनिट के बने हुए, एक लार्ज सब यूनिट है, एक स्मॉल सब यूनिट है ना. और उनमें कोई मेम्ब्रेन नहीं होती है. तो क्योंकि ज़्यादा चौंसला नहीं है इनका. फंक्शन हमने पढ़ लिया कि ये प्रोटीन सिंथेसिस की बॉडी में ये एक्चुअली इनसे एसोसिएटेड होता है. कमिंग टू द सेंट्रोसोम, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. द सेंट्रोसोम जो होते हैं दे आर मेड अप ऑफ टू सेंट्रियोल्स. ठीक है. दो सेंट्रियोल होते हैं. दिस सेंट्रियोल जो होते हैं दे आर लाइंग एट द राइट एंगल ऑफ वन आर्म. एक अगर यूँ पड़ा हुआ है तो दूसरा ऐसा पड़ा रहेगा. एंड इफ वी मैग्नीफाई दिस व्हाट वी फाइंड दैट दे आर एक्चुअली मेड अप ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स. एंड माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं दे आर फर्दर मेड अप ऑफ माइक्रोफाइबर्स.
माइक्रोफाइबर दो तरह के होते हैं, दैट इज एक्टिन एंड मायोसिन, एंड एक्टिन एंड मायोसिन माइक्रोफाइबर्स आर एक्चुअली रिस्पॉन्सिबल फॉर द कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है, तो वो मूवमेंट करा सकते हैं। इफ यू लुक एट द स्ट्रक्चर, हम इसको 9+2 अरेंजमेंट कहते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 and 9। ट्रिपलेट्स हैं ये, गुड मॉर्निंग सर। कोई इसके ऊपर कवर नहीं है, 3 माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं, है ना, एंड 9 सच थिंग्स आर देयर, दे आर कॉल्ड 9+2 अरेंजमेंट, नो मेम्ब्रेन, एंड ईच माइक्रोट्यूब्यूल इज फर्दर मेड अप ऑफ 13 क्या कहते हैं माइक्रोफाइबर्स, एक्टिन एंड मायोसिन, विच आर अरेंज इन अ अल्टरनेट फैशन, ठीक है, और वो लगातार लगे रहेंगे, ठीक है। तो ये जो हैं दे आर एक्चुअली रिस्पॉन्सिबल फॉर द कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन, सो दैट इज हाउ सेंट्रोसोम जो होते हैं, व्हाट दे आर डूइंग, सेंट्रोसोम्स आर फाउंड इन द प्लांट, इन द एनिमल सेल्स, इन प्लांट्स दे आर नॉट देयर, एंड ये कहाँ पे मिलेंगे, यू विल फाइंड देम क्लोज टू द न्यूक्लियस, ठीक है, और one pair of them are there, and during the cell division these centrioles separates and they form the poles between which the spindle fiber or astral fibers are formed, on which the chromosomes are attached, and they are actually responsible for the separation of the chromatids to the two ends during cell division। तो cell division का जब चैप्टर हम पढ़ेंगे 10 चैप्टर 10 चैप्टर, तो हम उसके बारे में जानेंगे कि वो कैसे होता है, ठीक है। तो अभी आप पैसा याद रखिए, डायग्राम याद रखिए, पीछे जाएंगे डायग्राम, और दैट्स व्हाट द थिंग इज, ओके। सो विद दिस ऑल द सेल ऑर्गेनली वी आर डन। माइक्रो बॉडीज़ के बारे में अगर आप पढ़े, दैट देयर आर सेवरल नॉन लिविंग थिंग्स आर देयर, जो कि वो स्टार्च ग्रेन्यूल हो सकते हैं, या फिर पायरिनोइड्स हो सकते हैं, या कुछ और टाइप की चीज़ें हो सकती हैं। दे आर स्टोर्ड फूड सब्सटेंस, जो फूड के स्टोर करने के तरीके हैं वो प्लांट के अंदर या एनिमल्स के अंदर वो अलग अलग हो सकते हैं। दे आर नॉट कैरिंग आउट एनी मेटाबॉलिक एक्टिविटी, दे आर एक्चुअली स्टोरिंग मॉलिक्यूल। ना सिंपल सी बात है कि दैट इज वॉट एवर द स्मॉलर मॉलिक्यूल्स आर देयर, इफ दे आर केप्ट इन द साइटोप्लाज्म दे विल डिजॉल्व इन द साइटोप्लाज्म, एंड इफ दे डिजॉल्व इन द साइटोप्लाज्म विल बिकम विस्कस। वो तो फिर जो है किसी चीज़ को ट्रांसपोर्ट नहीं कर पाएगा, है ना। कुछ चीज़ वो जो उसकी साइटोप्लाज्म की, हर सेल के साइटोप्लाज्म की विस्कोसिटी अलग अलग हो जाएगी, देन द डिफ्यूजन विल टेक प्लेस, अननेसेसरली मतलब प्रॉब्लम्स हो जाएगी। तो व्हाट डू प्लांट डू, प्लांट के पास स्टोरेज ऑर्गेनली तो केवल माइटोकॉन्ड्रिया है, सॉरी प्लास्टिड ल्यूकोप्लास्ट है, या फिर वैक्यूल्स है। इसके अलावा वो कहाँ भरेंगे? जैसे हम घर में कुछ चीज़ लेके आते हैं, अगर हम तेल ले आए, दाल लाए, शक्कर लाए, व्हाट वी डू, वी जस्ट पुट देम इन द वेरियस कंटेनर्स एंड केप्ट। तो वी गॉट नंबर ऑफ कंटेनर्स। इफ जिस दिन हमारे घर में 1-2 छुट्टी होती है, उस दिन मम्मी डिसाइड कर लेती है कि भाई आज सारे कंटेनर्स की सफाई करनी है, तो आप भाग जाते हो घर से, क्योंकि यू नो देयर आर सो मेनी कंटेनर्स विल कम नाउ, हाउ टू क्लीन और हु टू क्लीन, और ठीक है। सो देन वो एक लंबा चौड़ा काम है। तो we got so many containers, but that many containers or that many organelles are not there in a cell to store the various type of substances. So what do plant do or cell do? Cell के पास क्या ऑप्शन है, वो जो soluble micromolecules हैं उसको वो macromolecules में चेंज कर देंगे, and macromolecules become insoluble, ठीक है। Now it is possible कि 1 molecule of glucose को आप पानी में डिजोल्व कर लें, लेकिन hundreds and such thousands of such molecules will combine together to make a glycogen. Glycogen is insoluble in water. If it is converted into starch, it is insoluble in water. 1 molecule of amino acid is very much soluble in, और fatty acid is very much soluble in water. But आप उसको polymerize कर देते हैं,
many such molecules are combined together, then it become a polymer, and the polymers are insoluble in water, so they can be easily kept in cytoplasm without any problem. Okay, so that is the logic, that is a plant and animal and microorganisms and all, they store some type of molecules in the form of polymers. Okay, now पढ़ते हैं difference between prokaryote and eukaryote. प्रोकैरियोटिक सेल्स कौन सी होती हैं? आर दोज इन विच अ वेल डिफाइंड न्यूक्लियस एंड मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेली, जो भी हमने पढ़े थे, ये तो नहीं है मेम्ब्रेन बाउंडेड, इससे पहले पढ़े थे माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडी, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड्स, देन गोल्गी बॉडी, देन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, वैक्यूल्स एंड लाइसोसोम. These organelle are not there. Nucleus is also not there. They have got only one single chromosome. प्रोकैरियोट्स की क्या क्या करेक्टर्स हैं, हम एक एक करके पढ़ते हैं. ऑल द प्रोकैरियोट देयर साइज वेरीज फ्रॉम 0.2 माइक्रोन टू जो है 5 माइक्रोन तक. ठीक है. दे सेल वॉल इज मेड अप ऑफ पेप्टिडोग्लाइकन. दे मे हैव पिली और सम टाइप ऑफ क्या कहते हैं फाइब्रस अटैचमेंट, वो हो सकते हैं, जरूरी नहीं है. ठीक है. दे मे हैव फ्लैजिला, 2 flagella, or they may not have, ये कोई ज़रूरी नहीं है. Shape can be either a rod shape, or they can be coma shape, or they can be spiral, or they can be क्या कहते हैं spherical. ठीक है. तो 4 इनके शेप हो सकते हैं. Often we are classifying the prokaryotes, that is the bacteria, on the basis of their shape. तो शेप कौन कौन से मैंने बताया कि वो rod shape हो सकते हैं, वो spherical हो सकते हैं, वो कोमा शेप हो सकते हैं, और वो स्पाइरल हो सकते हैं. तो स्पाइरल को स्पाइरली कह देंगे, कोमा शेप को विब्रियो कह देंगे, स्फेरिकल को हम कोकाई कह देते हैं, एंड रॉड शेप को हम बेसिलस. तो ये इनके शेप हो गए. शेप इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ दिस थिंग. ठीक है. दे आर जनरली यूनिसेलुलर, होंगे तो यूनिसेलुलर हमेशा. हो सकते हैं कई बार दे में ग्रुप टुगेदर, दे में स्टे टुगेदर, एंड इट में अपीयर एज इफ दे आर मल्टी सेलुलर. ठीक है. मोड ऑफ न्यूट्रिशन, चलो पहले तो सेल के बारे में पढ़ लेते हैं. तो इसके अंदर केवल एक ही क्रोमोसोम मिलेगा, नो न्यूक्लियस. न्यूक्लियस नहीं है तो फिर क्रोमोसोम कहाँ मिलेगा? तो द क्रोमोसोम इज सराउंडेड बाय डेंस साइटोप्लाज्म एंड दैट इज कॉल्ड न्यूक्लियोइड रीजन. ठीक है. न्यूक्लियोइड इज डिफरेंट फ्रॉम न्यूक्लियस, है ना. तो इसमें कोई न्यूक्लियस नहीं मिल रहा है, इसमें न्यूक्लियोइड रीजन मिल रहा है ना. एक ही क्रोमोसोम मिल रहा है. एंड देन सम ऑफ द प्रोकैरियोट्स में हैव अनदर स्फेरिकल स्फेरिकल क्या मतलब सर्कुलर डीएनए, जिसको हम प्लाज्मिड कहेंगे. प्लाज्मिड इज देयर बट इट इज नॉट प्लेइंग एनी रोल इन इट देयर मेटाबॉलिक एक्टिविटीज. वो उसको किसी भी मेटाबॉलिक एक्टिविटी को कंट्रोल करने का रोल नहीं कर रहे. सम टाइम दे मे हैव सम टाइप ऑफ एंटीबायोटिक फीचर, तो दे मे बिकम रेजिस्टेंट टू द एंटीबायोटिक विच वी मेक, अदरवाइज वो उनके कोई और काम नहीं आ रहे. तो ये हो गए. एंड न्यूक्लियस तो होता ही नहीं है, मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेली है ही नहीं.